چلو خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی حضرت ہم کانپور سے بول رہے ہیں. کانپور سے کون سے محمد ارسلان قادری. محمد ارسلان قادری. محمد ارسلان قادری صاحب کانپور سے بول رہے ہیں. جی فرماؤ صاحب کیا حکم حضرت. ہے؟ جی حضرت بس ہم تھوڑا پشو پیش میں رہتے ہیں حضرت. کس کو مانے کس کو نہ مانے حضرت آپ اصلاح کر دیجیے میری. یہی بات ابھی ہمارے ساتھ ہمارے مرید آئے تھے اسلم صاحب. جی حضرت. وہ بھی یہ کہہ رہے تھے بس اپنی نماز پڑھو. حضرت آپ سید آتے ہیں, ہم سیدوں کے بڑا ادب کرتے ہیں دل سے. ایک بات بتاؤں آپ کو. جی حضرت. 150 سال پرانی کتابیں پڑھو. 150 سال پرانی. نہ نہ دیوبندی کی پڑھو, نہ بریلوی کی, نہ جماعتی, نہ کسی نے. 150 سال پہلے کوئی تھا ہی نہیں. اس زمانے میں ولی اللہ تھے, اولی اللہ تھے, انہوں نے جو اسلام بتایا ہے وہی پڑھو آپ. جی حضرت. حضرت آج یہ جاننا تھا کہ ایسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پہ بہت گستاخیاں ہوئیں, بے شمار گستاخیاں ہوئیں ان 5 سالوں میں. حضرت کسی نے اس پہ کچھ عالموں کو چھوڑ کے, جیسے سلمان اظہری صاحب ہیں اور ان کے جو دوست ہیں علامہ قمر غنی صاحب, ان لوگ کو چھوڑ کے ہندوستان میں حضرت کسی نے آواز نہیں اٹھائی. لیکن حضرت جب آپس میں پیروں میں جب ان کی شان میں کوئی گستاخی کر دے تو ترنت اس کا بائیکاٹ کرنے لگتے ہیں. کیا بات کہہ دی آپ نے, بہت اونچی بات کی, بہت اچھی بات کی. ہمیں سمجھ نہیں آتا. ہم اسی لیے حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کی شان میں گستاخی کی تو ہندوستان میں 2 ہی عالموں نے آواز اٹھائی, ایک مفتی سلمان اظہری نے, ایک مولانا قمر غنی. جی ان کے اور باقی ان پیروں کی شان میں گستاخی کر دو تو یہ جان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں مرید لوگ. یہ پیروں کی وجہ سے تو ہو رہا ہے کہ پیر اپنی شان میں گستاخی کرنے والے کو تو سوچتا ہے کہ ہمارے یہاں مرید تو اچھا ہے, خوش ہوگا. جی 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 خوش ہوگا, بلکہ خوش ہوگا پیر. ایک بات اور تھی, جیسے کہ ابھی سید گلزار میاں والا مسئلہ بھی چلا اور شمس الدین مکرانا صاحب والا. حالانکہ شمس الدین مکرانا صاحب نے وہ جو جاہل اور بدھو لفظ کہا ایک سید زادے کو, وہ ہم اس کے ہٹا رہے ہیں. وہ نام لے کے تھوڑی کہا ہے انہوں نے, وہ تو کہا تو ان کے لیے, لیکن نام لے کے تو نہیں کہا نا. لیکن ایک بات ہمیں سمجھ میں نہیں ہے, کوئی غلط تھوڑی کہا. وہ ایک مرد اصلی میں مرد آدمی ہے, اس نے کم سے کم ہمت تو دکھائی. ہندوستان میں ایک اکیلا ہی آدمی ہے جس نے ہمت دکھائی, ورنہ تو سب بیٹھے ہوئے چپ چاپ بیٹھے ہوئے. ہم کہہ رہے ہیں سب نے ایکشن لے لیا, سب نے ان کی بات پہ, لیکن اگر جب یہی حضور کی شان گستاخی ہوئی تو یہی حضرات چپ چاپ بیٹھے تھے. کیا بات کہہ دی, بہت اونچی بات کہہ دی آپ نے. یہ میں ایک بات بتاؤں تمہیں. جی حضرت. حضرت علامہ نقوی خان کی آپ کتاب پڑھنا, تفسیر المشرح. تفسیر المشرح جلد 2 صفحہ 173. اس میں انہوں نے واضح طور سے لکھا ہے, مدارج وہ شیخ عبدالحق صاحب کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے اور ایک دوسرے پر لعنت نہیں کرتے. اور یہ لکھا ہے کہ اہل بدعت, یہ میں نہیں لکھ رہا, نہ دیوبند والا لکھ رہا, یہ علامہ عبدالحق صاحب جو فاضل بھائی کے والد ہیں وہ خود لکھ رہے ہیں. وہ لکھ رہے ہیں کہ اہل بدعت کی پہچان یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں. صفحہ 173 جلد 2 علامہ نقوی خان کی کتاب میں میرے پاس رکھی رہتی ہے. اب بتاؤ یہ ایک دوسرے کو کافر کس میں کون سے فرقے میں کہہ رہا ہے؟ دیوبند والوں تھوڑی کہہ رہا ہے, آپسی میں سب انتشار یہ سب بریلویوں میں کہہ رہا ہے ایک دوسرے کو کافر, ایک دوسرے پر لعنت کر رہا ہے. آپسی میں اتحاد نہیں ہے تو پھر دوسرے کو کیا نہیں. اب مفتی شمس الدین مکرانا نے کون سی غلط بات کہی جو اس کے پیچھے اتنا پڑا جا رہا ہے. مفتی شہزاد عالم نے آڈیو ڈال دی اور حماد اور بھی بہت سے لوگوں نے ڈال دی. اور اگر ایک بات اور تھی, مفتی شمس الدین صاحب نے جو رجوع نامہ پوڈ کاسٹ ہوا 1 گھنٹہ کچھ منٹ کا, ہم نے پورا سنا, تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں اس بات سے تو چلیے ظاہر اور بدھ والی بات سے رجوع کرتا, لیکن میرا سوال ابھی بھی قائم ہے. کہنے لگے کہ میرا یہ سوال ہے کیوں کہا کربلا والوں کو بریلوی کیوں کہا؟ کربلا والے اور تمام جنگ میں جتنے بھی سب بریلوی تھے. تو میرا یہ سوال تھا, جنگ بدر میں احد میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, تو کیا وہ بھی بریلوی تھے؟ یہی سوال ہے. وہ تو آگے چل کے کہیں یہ نہیں کہتے گلزار میاں کہ اگر کربلا والے زمانے میں ہوتے تو اظہری میاں کے مرید ہو جاتے, اور لوگ کہتے مشرق اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر اللہ. ارے وہ تو یہ بھی کہہ دے, اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. دیکھنا کہیں کے دن یہ بھی کہہ سکتا ہے, کچھ اور بھی کہہ سکتا ہے کہ اگر غریب نواز کے زمانے کے لوگ موجود ہوتے تو پھر اظہری میاں کے مرید ہو جاتے. اگر آپ کو بات بتائیں, ہم مرید ہیں گلزار میں ہوتے, لیکن اگر ہم عقیدت کے آگے شریعت کو نہیں لاتے, شریعت کے آگے عقیدت کو نہیں لاتے. یہ شریعت پہلے ہے.
اب بتا، اب جو عقیدت یہ بات کہے میں بندہ کہ مجھے حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں ہے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پوری جنگ رکوا دی، حضور کے بال مبارک صرف ٹوپی میں ایک سے بال نیچے مبارک آپ کی ٹوپی میں پوری سلک تھا، جنگ رک اس گئی. کو حاصل کرنے کے لیے کفار کے لشکر میں گھس گیا حضرت خالد جی بن ولید. اس صحابہ نے پوچھا جی بھی کہ آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، کہا کہ اس بال کی مبارک کی وجہ سے مجھے فتوحات حاصل ہو رہی، اس جی ٹوپی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کفار کے لشکر میں گھس گئے. جی جی. اس بال کے اوپر ناز تھا، اس کو حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں ہے. کیسا یہ آدمی ہے؟ حضرت ہم وہ جو پاکستان کے نہیں یہ بتاؤ، یہ آدمی جی عدلیہ پہ تو ناز کر رہا ہے اور حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ حضرت علی کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہے. یہی بات ہوئی نا صاحب؟ وضاحت بھی جی وضاحت بھی کرنی چاہیے کہ نہیں، بیان اگر کرے تو یہی بات وضاحت کل کو کرے. اگر دیوبندی کہہ دیتا اور ندوی کہتا تو کب کا کافر بنا دیتے اس کو یہ لوگ. جی یعنی اپنا والا کہے گا تو تعویل کریں گے، دوسرے کہے گا تو ہم کافر کہیں گے اسی بات کے اوپر. یہی بات اگر دیوبندی کہے گا تو کافر، یہی بات ان کا والا کہے گا تو مسلمان ہے. دو ترازو میں لگا رکھی ہیں لوگوں نے. جی. حضرت میرے دادا بھی مرید کرتے ہیں کیا قادری نام ہے آپ کے سلسلے دادا کا؟ حافظ انور قادری، مفتی اعظم نان پارا، مفتی رجب علی قادری کے رجب خلیفہ علی ہیں. صاحب نان پارا کے تو ان کے لڑکا تو بہت جی جی. نالائق نکلا، محمود ہے نا، جانتے ہو نا؟ جی حضرت بہت جانتے ہیں سب نالائق، کو. بہت دادا نالائق. اس نے تو خرگا پور میں مٹی پلیت کر دی والد کی. ہاں پہلے بہت شروعات میں بڑی غلطیاں ہوئی. ارے شروعات میں نہیں تو خرگا پور جو ہے نا ٹیکم گڑھ کے پاس میں. جی حضرت آپ کہاں سے وہ رکھتے ہیں تعلق رکھتے ہیں؟ میں نے مفتی نانپارا کے ساتھ میں کافی ملاقات ہوئی ہے میری. سبحان ان کے اللہ وہاں مرید سبحان بہت تھے ٹیکم گڑھ میں کئی بار گیا ہوں، ملاقات ہوئی میری. جی وہ تو خیر باعمل عالم تھے مفتی نانپارا جی رجب جی. علی وہ تو صاحب، ان کی تو بات آگے ہے بیٹا. اور وہ سادہ مزاج آدمی تھے. جی جی. سخت مزاج تو تھے مگر سادہ مزاج تھے. اور وہ وہاں بہترین ٹھہرتے تھے سنیے. کانپور میں کرنیل گنج میں. کون سے حاجی جی جو حشمتی تھے، ہاں ہاں وہ حاجی منور تھا. ہاں ان کے یہاں ٹھہرتے تھے وہ کرنیل گنج میں. جی اور سنو، مفتی نانپارا جو تھے وہ باعمل شخصیت تھے. جی. وہ تو بلبل ہند کا لقب تھا ان کو. بلبل ہیں ان کا لقب. اور للت پور میں ان کے مرید تو کم تھے لیکن ٹیکم گڑھ میں زیادہ تھے. چھتر پور ہے، ٹیکم گڑھ ہے، جھانسی ہے. جی تو وہ الگ معاملہ تھا ان کا صاحب. جی حضرت. وہ ان کے آگے گلزار میاں کیا ہے، اگر گلزار میاں ان کے سامنے ایسی بات کرتے ڈانٹ دیتے، وہ حضرت ڈانٹ دیتے ایک دم. ہاں حضرت تو فی الحال حضرت ڈانٹ کے بتا دیتے کہ یہ کیا پکڑا ہے، تو چل نکل جاتے. یا ڈانٹتے نہیں تو کچھ، ہاں یہ ڈانٹتے نہیں تو کچھ تنبیہ تو کرتے ہی کرتے. کیا خیال ہے حضرت جو یہ کہے کہ مجھے حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں ہے، مجھے فاضل بریلوی پر ناز ہے، اظہری میاں پر ناز ہے. اور اگر اظہری میاں موجود ہوتے؟ اچھا اظہری میاں موجود ہوتے وہ بھی خوش ہوتے کہ اچھا اس نے اچھی بات کہی. وہ تو سب ایسے ہی ہیں، دکھانے کے لیے کچھ جلدی سے کہہ دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ ظاہری طور سے اپنا دکھانے کے لیے ڈانٹ پھٹک دیتے ہیں، لیکن اندر سے خوش ہوتے ہیں کہ اچھی بات. جی حضرت نے آج جان لیا تھا کہ جو حضور کی بات کرے گا بس ہم اسی کے ساتھ ہیں. میں کہوں حق بات کہنے میں آج کے زمانے میں تو مشکل ہی ہے. کوئی ہے ایک ہی مرد مجاہد ہے جو پنجاب کا شاہی امام ہے، حضرت مولانا عثمان صاحب لدھیانوی. جی وہ شاہی امام پنجاب ہے نا، آپ سنتے ہو تقریر. اور علامہ خادم حسین ندوی صاحب نہیں، شاہی امام پنجاب مولانا عثمان صاحب. جی وہ آدمی حق بات کہتا ہے بس. وہ کوئی پارٹی سے نہیں ہے، نہ دیوبند سے نہ بریلی سے، وہ سیدھا اسلام بیان کرتے ہیں بس. اچھا. حق بات کہنے کون ہے حق بات کہہ رہا؟ بتاؤ آج کے دور کون حق بات کہہ رہا؟ مشکل ہے. ہاں مفتی اعظم ہند ضرور ایسے تھے جو ٹوک دیتے تھے، ورنہ ان کے بعد تک کوئی نہیں ایسا. مفتی اعظم نے لگا کی بات وہ تو خیر ٹوک دیتے تھے، کوئی بھی بات ہوتی تھی ٹوکتے تھے. حضرت آج جو وقت بل کا میٹر جو چل رہا ہے، ورنہ مفتی اعظم کے بعد تک کوئی نہیں رہا، ان کے جانشینوں میں بھی کوئی نہیں تھا، سب ایسے ہی تھے. بلیاوی نے غلام رسول بلیاوی نے جب استبل بتایا اشرفیہ مبارک پور کو تو یہ اظہری میں اسی جلسے میں تھے. غلام رسول بلیاوی کے کپڑے پھاڑ ڈالے تھے اور اس کو بے ہوش کر دیا تھا، اتنا مارا تھا بے ہوش ہو گیا تھا یہ مبارک پور میں. اور اظہری میاں جلسے میں آ بھی نہیں پائے تھے، ماحول خراب ہو گیا تھا پورا. تو اظہری میاں کو کیا معلوم نہیں تھا کہ اس نے ایسا بولا ہے؟ جب اتنا بڑا ہنگامہ ہوا سب معلوم تھا، لیکن آج تک نہ کلمہ پڑھوایا اظہری میاں نے، نہ توبہ کروائی. محدث کبیر کو بھی سب بات معلوم. کیا ہوا تھا ایسا؟ وہ جلسہ کرایا تھا محدث کبیر نے اشرفیہ کے مقابلے میں، اشرفیہ کے سامنے. اچھا. کیونکہ اشرفیہ سے محدث کبیر کو نکال دیا تھا نا. جی. تو اس کی مخالفت میں محدث کبیر نے غلام رسول کو بلوایا تھا، جلسہ کرایا. اظہری میاں کو بھی بلوایا تھا.
तो हज़ारी आ नहीं पाए तो क़याम गाह में थे। तो इतने में गुलाम रसूल बलियावी ने बोल दिया कि अशरफिया जानवरों के बनने की जगह है, अस्तबल। अच्छा। तो वही अशरफिया के लड़के खड़े हुए थे, बहुत मारा, इतना मारा कि बेहोश हो गया था, कपड़े फाड़ डाले थे इसके। अरे बाप रे बाप। वो तो मरा हुआ समझ के छोड़ गए थे इसको, ये तो नहीं तो ये मर जाता गुलाम रसूल। और तो क्या ये बात हज़ारी मियां को मालूम नहीं थी कि इसने ऐसा बोला? कभी तौबा करवाई हज़ारी मियां ने? कभी कलमा पढ़वाया मुहद्दिस से? कभी ने? ये सिर्फ दूसरों से कलमा पढ़वाते हैं, तौबा करवाते हैं कि अल्लाह ताहिर काजी काफिर है और ये इनका मुरीद मोमिन है। और हजरत एक बात बहुत, जैसे जो वक्फ बिल का मैटर जो नहीं चल रहा है, वक्फ बिल वाला, हाँ, ये अपना ज़ाती मामला है। तो इसमें बताया जा रहा था कि जो लोग कहते हैं कि असद रजा ने कुछ नहीं किया, वो ये देख ले कि वो 155 वकील को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो हमने कहा हजरत इसमें दीन का तो कोई काम नहीं है, ऐसा है कि हुजूर के नामों से तो कुछ बोला नहीं, जब अपने में बात पड़ी है तो सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा रहा है, हर जगह जाया जा रहा है। कौन गए? अफजल रजा गए सुप्रीम कोर्ट? हाँ, ये न्यूज आई थी। लेकिन हजरत इसमें हुजूर के नामों से क्यों नहीं बोला जाता है? ये बात वक्फ बिल का मसला है तो जा रहे हैं, और नामों से ये तो जाती मामला है ना जी, ये तो जाती मामला है वक्फ बिल वाला। हुजूर के नामों से सबसे अफजल। अब ईमान खत्म हो गए, क्या लिखा हुआ है कि मस्जिद नमाजियों से भरी होगी, उनमें एक भी ईमान वाला नहीं होगा। अल्लाह। हाँ, ये लिखा हुआ है, मस्जिद नमाजियों से भरी होगी, उनमें एक भी ईमान वाला नहीं होगा। तो ऐसे हालात आ गए हैं कि ना तो आदमी ज़कात निकाल रहा। अभी आप ज़कात निकालने की बात कर दो तो बहुत से मुसलमान अंदर से काफिर हो चुके हैं, ये कह सकते हैं कि नहीं साहब, अगर ज़कात की बात करोगे तो हम ईसाई हो जाएंगे, हम ज़कात नहीं निकालेंगे। वो सोचेंगे 1 करोड़ में 2.5 लाख हम कैसे निकालें, हमारा तो 2.5 लाख खत्म हो जाएगा। ऐसे मुसलमान हो चुके हैं जो अंदर से काफिर हो चुके हैं, जबान से नहीं कह रहे। हज नहीं कर रहे, करोड़ों रुपया हज नहीं कर रहे, शादियों के बहाने लेके बैठे हैं, लड़की की शादी करना है, लड़के ही करना है, जबकि करोड़ों रुपया है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं कर रहा है। तो ऐसे तो मुसलमान हो चुके हैं। आम बात है, सूद खा रहे हैं, आपको मालूम है कि सूद ब्याज बहुत खा रहे हैं मुसलमान लोग जी। उन सूद खोरों के यहाँ ये लोग पीर लोग जाके ठहरते हैं, ये भी खाते हैं, आपको मालूम होगा जी। तो आप कानपुर में कौन से मेले में? कर्नेलगंज में, चमनगंज में, कहाँ पर हो? बेकनगंज में। अच्छा, वहाँ पर वो कितने काजी? सुना है कानपुर में 9 काजी थे। अरे हाँ, बहुत सारे हैं। अभी कितने? यूनुस रजा एक है, एक शाकिब अदीब है। यूनुस रजा नहीं है, मुनिस रजा। नहीं, उनका पूरा नाम है डॉक्टर यूनुस रजा मोनिस ओवैसी पूरा नाम। हाँ, डॉक्टर मोनिस ओवैसी। वो पहले जामियात निज़ाम पढ़ाते थे बरेली में। वहाँ पढ़ाते थे। है तो काबिल आदमी, शख्सियत है, काबिल है, लेकिन वो मुफ्ती सलमान नजरी साहब से वो रखते कहते हैं पसंद नहीं आता, तो अगर उनको नहीं पसंद करते। क्या मुफ्ती सलमान नजरी साहब को इतना पसंद नहीं करते। अच्छा, वीडियो बनवाते हैं। हाँ, तो अगर हम उनको नहीं पसंद करते, हम जो नामों से रिसालत के लिए बोले उसको नहीं पसंद करते तो क्या? वीडियो बनाना तो उनकी एक मजबूरी है ना, वो तो फेमस होने के लिए वीडियो बनवाते हैं। और एक बात और भी थी। अच्छा, ये कानपुर में ये आदमी कैसे? शहबाज अनवर साहब। शहबाज अनवर, हाँ, ये भी मुफ्ती आजम कानपुर का लकब पहले था, अब जो है लकब उनको पास चला गया, मुफ्ती रियाज खान नूरी साहब के पास। एक रियाज साहब का तो इंतकाल हो गया, जो वहाँ पर थे कच्ची मस्जिद में, बाबूपुरवा में। हाँ, मौलाना रियाज अहमद हशमती, वो कट्टर आदमी था जी। मेरा इनके साथ प्रोग्राम हो चुका है। मुफ्ती आसम साहब है ना, जो आसम साहब के नाम शहबाज अनवर जी। मुफ्ती हनीफ बरकाती जी, मुफ्ती हनीफ बरकाती भी एक काबिल शख्सियत है, इनके साथ भी हमारा प्रोग्राम हो चुका है वहाँ पर पीकी में। और अगर मुफ्ती यूनुस रजा वैसी जो है, वो जो पुराने काजी थे, जब एक ही काजी थे कानपुर में, उनके साथ भी हमारा प्रोग्राम हो चुका है। काजी अब्दुल समी साहब, उनके साथ मेरा उन्नाव में संडीसन स्कूल के पास प्रोग्राम हुआ। जैसे हजरत एक बताया आपको, मुफ्ती यूनुस रजा वैसी साहब ने एक बात कही थी पिछले साल मुहर्रम में कि ये जो हदीस पाक को लेके कि मन सब्बा नबीयन फक्सलू, कि जो हुजूर की शान गुस्ताखी करे उसको काट के रख दो, और सरतम जुदा के नारे ये हिंदुस्तान में तुम नहीं लगा सकते, का ये कहना बिल्कुल गलत है। एक बात बताऊं जी, कानपुर में इतने पैसे वाले लोग हैं मुसलमान, अगर ये मौलवी लोग चाहते हैं ना तो कानपुर में एक हिंदुस्तान की नामी गिरामी यूनिवर्सिटी बन जाती, आराम से बन जाती। इतने पैसे वाले, कितनी फैक्ट्रियां वाले हैं। अरे बहुत पैसा सुना। हाँ, तो बाप पर्दा लड़कियों का कॉलेज बन जाता, बाप पर्दा लड़कियां पढ़ती हैं, नमाजें कदा नहीं होती। आज हर लड़की की नमाज कदा हो रही है स्कूल में जाने के बाद। हर लड़की लड़का, क्या है वो देवबंदी की लड़की हो, क्या है बरेलवी की हो, क्या है रजीज की हो, जितनी लड़कियां जा रही हैं स्कूलों में उनकी नमाजें कदा हो रही हैं जी। और इसकी परवाह न तो देवबंदी कर रहा, न बरेलवी, न रजीज, कोई जमात नहीं कर रही। अकेला मैं ही आवाज उठा रहा हूँ कि भाई ऐसा स्कूल खुलवाओ जिसमें लड़कियों की नमाजें कदा ना हो।
क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क़यामत में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा, हुजूर फरमाते हैं। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने जानबूझ के एक नमाज छोड़ दी उसने कुफर किया है। अब रोजाना एक कुफर कर रही है लड़की, जानी देवबंदियों की भी, बरेलियों की भी, अहले हदीस की, सबकी। अगर आप मेरे उस्ताद को जानते होंगे शायद, कारी निकल दिया ही था। कारी निकाल जाई जी, वो कौन है, आपके वालिद हैं? नहीं मेरे उस्ताद हैं, वालिद के तरीके ही हैं। वो तो वो छापते थे, कातिब है, बहुत बढ़िया कातिब है। जी जी, उन्होंने भी फतावा रज़िया शरीफ की 32 जिल्दों को 2 जिल्दों में करा। हाँ तो वो उस मस्जिद में इमाम है ना, कौन सी मस्जिद, छोटी मस्जिद, ताज मस्जिद। हाँ तो मैं आया ना, हम लोग पंपलेट छपवाने के लिए शायद उनसे आए थे, कातिब थे उनके पास। जी, कारी निकाल जाई बहुत अच्छे काबिल आदमी है, और वहाँ अफहम में पढ़ाते नहीं है वो। जी जी, पढ़ाते थे, रिटायर हो गए। वो तो बहुत पुराने आलिम है जी, वो सब जानते हैं। ये इलियास काजी के बारे में भी जानते हैं वो, और ये हशमतियों के बारे में भी जानते हैं, सबके बारे में काजी में। ये इलियास काजी जाहिल आदमी है, इसने ये कहा था कि सहाबा किराम मुजद्दिद नहीं थे, मैं भी मुजद्दिद नहीं। जी जी, इलियास काजी ने तो ऐसी ऐसी गुस्ताखियां की हैं, अगर मोमिन होगा ना तो इन दावत इस्लामी वालों को घुसने नहीं देगा। जैसे कि मेरे उस्ताद है वो, उन्होंने मुझे हाफिज़ा कराया, तरफ जामी पढ़ाया। अब बताओ, इलियास काजी ने लिखा सफा 31 में कि अल्लाह के रसूल खड़े और ये बैठा हुआ है, कैसी गुस्ताखी लिखी इसने। सफा 27 में लिखा कि जितने लोग इसके इज्तिमा में गए सबकी बख्शिश हो गई, तो जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं हुई। और एक आदमी इसके सामने खड़ा होकर कह रहा है कि हजरत अल्लाह के रसूल ने आपको सलाम भेजा, ये कुर्सी से उठा भी नहीं, कुर्सी पे बैठा बैठा अल्लाह के रसूल के सलाम का जवाब दे रहा, कुर्सी पे बैठा बैठा। जी जी, हमने जो है सुना वो भी सुना। किसका मेरा? देखिए वीडियो देखिए, देखा ना, कुर्सी पे बैठा हुआ अल्लाह के रसूल के सलाम का जवाब दे रहा। हाँ। अच्छा ये बताओ, मैं अगर कानपुर में आऊँ और आप मेरे से कहो बैठो ने खुशखबरी सुनो, मैं अजमेर गया था और गरीब नवाज ने आपको सलाम भेजा है, तो आप खुशी में क्या होगा बताओ? आप तबीयत भी खराब होगी तो आप खुशी में झूमोगे कि नहीं? घूम जाएंगे हम तो। अब जिसे अल्लाह के रसूल सलाम भेजे और ये ऐसे कुछ कैफियती तारीफ नहीं हो रही इसके ऊपर। इलियास का कितनी मक्कारियां कर रहा था, कितना झूठ बुलवा रहा है। और एक टर्की का बादशाह था, जब उसके सामने अल्लाह के रसूल का किसी ने हवाला दिया नाम लेकर के, अल्लाह के हमीद खान सानी, हाँ तो वो तखत से गिर गए थे कि नहीं नीचे? सुल्तान अब्दुल हमीद खान, हाँ वो तखत से नीचे गिर गए थे। और ये कोटा वालों के समझ में नहीं आ रही, ये मौलवी अजीज सोच जो साजिद देड़ा कोटा में, ये कभी भी बुराई नहीं करते। ये अच्छी तारीफ करेगा कि मर्द मोमिन है, कामिल है, बुजुर्ग है। और ये विज्ञान नगर का इमाम भी बड़ी तारीफ करेगा, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। अरे तो फिर देवबंदियों को ही बुजुर्ग मान लो ना, जमात वालों को ही बुजुर्ग मान लो। तुम अपने वाले को बुजुर्ग मान लो तो इन सबको मान लो। तुम्हारा वाला गुस्ताखी करे तो हजम है, दूसरा करे तो वो काफिर है, यानी दूसरा करे तो काफिर है, इनका करे तो हजम है। ये इलियास काजी गुस्ताखी करे तो हजम है साहब। इसलिए कि पैसा बांट रहा है ना, ज़कात से बांट रहा है, सबसे खिला रहा है, खूब माल खिला रहा है, तो सब जायज है इनके नजदीक पे। क्या ख्याल है? ये बताओ, मैं हक बात कहता हूँ कि नहीं कहता? अरे तो आपकी बात सुन के मजा आ गया। मजा आ गया ना? नहीं मेरी हक बात है कि नहीं, कोई गलत तो नहीं है ना? ज्यादा गलत होगी तो मैं खुद तौबा कर लूंगा, मैं कलमा पढ़ लूंगा मेरे। वही हम सोचते कि आज हुजूर की शान में इतनी तमाम गुस्ताखियां हों, किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन तीरों की शान में हो जाती है, तुरंत उठ के आ जाते हैं। एनआरसी मसला जाती था, उसमें तुरंत उठ के आ गए। लेकिन देखो अल्लामा ताहिरुल काजी में गलतियां हैं, हम भी मानते हैं, वो सुल्तानुल मुकर्रमीन है। लेकिन अल्लामा ताहिरुल काजी में ऐसी गलतियां नहीं है कि जिससे हम उन्हें काफिर कहें। हम गुमराहियत का फतवा कुछ जुज़वी गुमराही मान सकते हैं, जुज़वी गुमराही। लेकिन इलियास काजी के अंदर अगर तकाबुल करो अल्लामा ताहिरुल काजी का इलियास का, तो इलियास में 10 गुना गलतियां ज्यादा मिलेंगी। इलियास की जिंदा करामत देखो आप, किसने अपने चेहरे पे से काले निशान मिटवा लिए और ब्लीचिंग करवा के चेहरा साफ करवा लिया। जिंदा करामत, ये बताओ, ये करामत बताएंगे कि नहीं कि देखो उनका चेहरा साफ हो गया? हम ही बता रहे थे, मेरे उस्ताद ने एक बात कही थी, कारी मिसाल साहब ने कह रहे थे कि अल्लामा ताहिरुल कादरी पहले बहुत शानदार आलिम दीन थे, लेकिन कहने लगे कि हम ही लोगों ने उनसे गलतियां हुई, उनकी गलतियों पर तबसरा करके उनसे बात करनी चाहिए थी, उनकी गलतियां को जो है हटवाना चाहिए था, लेकिन फतवे पहले लगा दिए, बात ही नहीं करी उनसे। बात करके अगर मानते तब ठीक था, बात ही नहीं करी उनसे। इलियास काजी की तरफ पैसा बांट देते ना, ज़कातें खिला देते मौलवियों को, तो सारे मौलवियों की मौत हो जाती है नहीं? अगर दुआ करिएगा मेरे लिए। तो आप ये इनसे मुरीद होने से क्या फायदा? जो आदमी ये कह रहा है कि करबला वाले बरेलवी थे, इमाम हुसैन को जो बरेलवी बता रहा है, इसे शर्म नहीं आ रही? इसे शर्म नहीं आ रही? कल को ये कह देगा वो रजवी थे, कल को कह देगा वो अख्तरी थे, अजहरी में आके मुरीद बनने के
अगर अगर अजहर मियां को देख लेते तो उनके मुरीद बन जाते। कल को ये भी कहते वो क्या जा रहा, उसका क्या जा रहा, हाँ, कल को ये हम भी ये कहते वो सोच कि रहे अजहर मियां को जी, देख लेते तो इनसे मुरीद हो जाते वो लोग। अरे इमाम हुसैन का कितना बड़ा मर्तबा है साहब, आपको तो अब मालूम ही है, बोलना सबको जी, मालूम है। बोलना ये चाहिए था कि जो उनका अकीदा था वही हमारा नहीं, ये अकीदा तो है। इमाम हुसैन के बारे में कभी बोलता भी नहीं है साहब तकरीर में, ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मर्तबा बयान करता, ना इमाम बाकर का बयान करता, ना इमाम जाफर का, जब देखो जब आला हजरत और अजहरी मियां का बयान करता है। कभी इसने मसौली में जश्न इमाम मूसा काजिम करवाया, कभी इन्होंने जश्न इमाम बाकर करवाया, कभी इन्होंने जश्न इमाम अली रजा करवाया मसौली में, कभी कालपी वाले ने जश्न इमाम अली रजा करवाया, इमाम हसन अस्करी करवाया, जश्न इमाम खालिद बिन वलीद करवाया, जश्न उमर फारूक आजम करवाया कालपी में। वो कालपी वाला ना आलिम है, ना कारी है, ना हाफिज है। कालपी वाला क्या है बताओ, कोई करामत है उसकी कालपी वाले की? वो सैयद गयासुद्दीन, अगर करामत है दिखाए, वक्फ बिल के मसले मेरे साथ चले, दिल्ली में लेके चलूं उसको दिल्ली में। वो तो मेरे कारी साहब के शागिर्द हैं। किसके शागिर्द हैं? कारी मिकाइल दिया साहब के शागिर्द हैं। शागिर्द तो लेकिन है अब वो सुनिए तो हजरत, उनका एक बयान सुना था, वो कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई पीर है ही नहीं हिंदुस्तान में, और मालूम हमसे बड़ा है। पीर अगर कोई हो तो ला। कालपी वालों का मर्तबा आपको मालूम है? अगर कानपुर में आके स्टेशन पे खड़े जा, रेलवे स्टेशन में फूक मार दे तो पूरा स्टेशन हो जाएगा कि नहीं, बताओ आप? नहीं, वो कह रहे थे कि सब हमारे यहाँ चूमते, बरेली वाले आए तो हमारे यहाँ चूमे, महरारा वाले आए तो हमारे यहाँ चूमे। कालपी वालों की करामत मैं आपको बताऊं, अगर वो गंगा जमुना नदी पे खड़े होकर अगर यूं फूक मार दे तो पूरा पानी हवा में उड़ जाएगा कि नहीं? अच्छा, इतना बड़ा बामल और रूहानियत वाला वो करामती आदमी है, साहिब शख्सियत है वो भी अपने वक्त की। और शाह वहाँ पर उसने क्या करामत दिखाई थी मालूम है आपको? वहाँ पर शाहजहाँपुर में जाकर के शबाब नियाज़ जी, नहीं मालूम आपको? नहीं जरूर नहीं मालूम। हम गए थे जब उसी जमाने में जब ये गायब थे कालपी से, 3-4 महीने गायब रहे हैं। जब वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर शाहजहाँपुर में ऐसा ही कुछ मामला हुआ था ना, तो इनकी बैठक में मैंने खुद देखा धूल पड़ी हुई थी, गद्दी पे धूल पड़ी थी कालपी में, हम खुद हाजिरी देने गए। हजरत आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? मेरा सिवान जिला विदिशा मध्य प्रदेश से ताल्लुक है। मैंने सफीपुर में मदरसा चलाया, कानपुर के बाद जो सफीपुर है ना 57 किलोमीटर दूर, जी सफी वहाँ मैंने कई साल मदरसा चलाया दालूम गरीब नवाज के नाम से। वो हमने कायम किया था, दालूम फैजल नबी गरीब नवाज नाम मैंने रखा था उसका। अच्छा। तो सफीपुर ये कानपुर से वहाँ पर मेरी काफी तकरीरें हुई है उस इलाके में। अच्छा, लेकिन अब मैं न देवबंदी हूँ, न बरेलवी, न अहलदी, न मैं अब सीधा रास्ता दिखाता हूँ इस्लाम का, सीधा रास्ता। आप इस्लाम को मानो, सबको मुसलमान मानो, और जो काफिर है तो वो जाहिर हो जाएगा दुनिया में, अल्लाह ताला उसको जलील कर देगा बस। बाकी दुआ की दरखास्त। एक पॉइंट की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो गुस्ताखे रसूल होता है अल्लाह उसका दुनिया में जीना हराम कर देता है, बस ये अकीदा आप रखना। बिल्कुल, दुनिया में जीना हराम, जैसे वसीम का हुआ, सलमान रुश्दी का हुआ, ये बिलावजह देवबंदियों को गुस्ताखे रसूल कहते हैं कि ना यार, गुस्ताखे रसूल का तो अल्लाह दुनिया में जीना हराम कर देता है। और गुस्ताखे रसूल को छोड़ेगा कौन, ये बताओ? छोड़ेगा कौन? उसे घर में घुस के लोग मार देंगे, क्या ख्याल है? बिल्कुल बिला वजह गुस्ताखे रसूल कहना ठीक है, तुम्हें नहीं मानना मत मानो। एक हमारा ये भी अकीदा है कि काफिर मुश्रिक यहूदी और गुस्ताखे साहबा कुरान का हाफिज नहीं हो सकता, तो गुस्ताखे रसूल कैसे हो जाएगा? तो देवबंदी तो कुरान के हाफिज होते हैं। और अगर देवबंदी बरेली वालों को मुश्रिक कहते तो हम देवबंदियों से भी लड़ जाएंगे, भाई मुश्रिक कुरान का हाफिज कैसे हो रहा है? बरेलियों में भी कुरान के हाफिज होते हैं, खुद है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? नहीं आप इसलिए मेरी बात आपको लग रहा हो वजनदार होती है कि नहीं होती? क्या नाम बताया आपका? आपका नाम क्या बताया? जी हजरत, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान कादरी। अरसलान काजी साहब, चलो बहुत अच्छी खुशी हुई आपसे मिल करके। आप इंशाल्लाह कानपुर के कुतुब बन जाओगे, थोड़ी मेहनत करो तो अल्लाह मुझे दुआ करिए हजरत, थोड़ी मेहनत करो तो अल्लाह इंशाल्लाह कुतुब बना देगा आपको। और नमाज पढ़ो, जो मैंने बताया 150 साल पुरानी किताब नमाज। अरे मेरी नमाजों में दुआ यही रहती है कि अल्लाह मेरे हाथों में इतनी तौफीक दे। आप किसी को काफिर मत समझो जब तक उसका कुफ्र खुलकर सामने ना आए। जी हम ऐसे नहीं कहते कि जब तक सूरज छिपने के आया ना हो, जब तक कुफ्र। हाँ बस आप मुसलमान मानो सबको, देवबंद वालों को भी सबको। और अगर हम दुआ भी यही करते हैं कि अल्लाह मेरे हाथों में इतनी कुव्वत दे कि तेरे महबूब गुस्ताख को खुद फनाफिन नार करे। बस रूहानी ताकत जब होगी, हलाल रोजी खाना, कहीं इधर उधर खाना मत खाओ जब तक मालूम ना हो रोजी कैसी है। जी हम भी जब जाते हैं तो पहले मालूम करते हैं रोजी क्या है क्या नहीं है, फिर उसके बाद हम जाते हैं। नहीं तो आज हमारे पास खुद मर्सिडीज गाड़ी होती, मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी होती, उस गाड़ी और हवाई जहाज से हम घूम रहे होते। अभी अगर हम आराम की परवाह नहीं करते ना, तो पूरे हिंदुस्तान का सफर हम हवाई जहाज से करते, लेकिन हम मोटरसाइकिल से करते हैं। हम खुद अभी मोटरसाइकिल से आए हूँ, मैं रामपुर से मुरादाबाद तक हमारे मुरीद लेके आए जनाब असलम साहब मोटरसाइकिल से। कौन पीर मोटरसाइकिल से सफर कर रहा है बताओ आप? आज सुनिए
आजकल का कोई पीर है हिंदुस्तान में जो मोटरसाइकिल से सफर करता है? इक्का दुक्का कोई पीर मिलेगा आमतौर से? सरकार नजीर मियाँ है, हाँ, उन्होंने एक बात फरमाई, कहने लगे आजकल पीर की दुआओं से मुरीद साइकिल तक नहीं खरीद पाता, लेकिन मुरीद की दुआ से पीर मर्सिडीज में टहलता है। वही तो। जी। मारर शरीफ में एक अभी सुल्तानुल मुजाहिदीन है, हजरत मौलाना सैयद सिब्तैन हैदर मियां। सिब्तैन हैदर मियां, वो सुल्तानुल मुजाहिदीन है और ताजदार अहले सुन्नत। सिब्तैन हैदर मियां हजरत जी, तो इन्होंने गयास मियां के ऊपर जो केस चल रहा था उसको भी हटवाया था मेरे ख्याल से। उन्होंने तो हटवाया था, उन्होंने मदद की। हाँ, जो वो खानका में मसला हो गया था। और मारर शरीफ में एक इमाम अहले सुन्नत थे वहाँ पर बदायूं में, अल्लामा उर्शदुल हक बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा। वो थे काबिल शख्सियत। अब कोई नहीं रहा काबिल। अब तो इमाम मियां साहब हैं, ठीक है, नेक आदमी है, बुजुर्ग है, लेकिन ऐसी शख्सियत नहीं है जैसे वो थे अल्लामा उर्शदुल हक बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह। और या हजरत पीर सकलैन मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, वो भी बरेली में अच्छे नेक आदमी। अब मुरादाबाद में, अब आपको अगर देखना है तो कभी मुरादाबाद में आके देख लेना। मुफ्ती आजम मुरादाबाद हजरत मौलाना मुफ्ती अय्यूब खान साहब नईमी जामे नईमिया में 64 साल से पढ़ा रहे हैं। इस वक्त मुरादाबाद की हस्तियों में वही है। इस वक्त पूरे इलाके में कोई हस्ती नहीं है उनके मुकाबले, मुफ्ती अय्यूब साहब के मुकाबले। मेरा तो अपील ये है कि पूरा मुरादाबाद उनसे मुरीद हो जाए, वरना वैसा पीर मिलना मुश्किल हो जाए। पूरा मुरादाबाद उनसे मुरीद हो जाए। ठीक है ना, आप इंशाल्लाह फिर बात कर लेना बाद में, ठीक है? इंशाल्लाह। और मेरी कोई गलती तो नहीं है ना ऑडियो फाडियो में? अरे नहीं हजरत, हम बड़ी अच्छा लगा बात करके। सुनते रहते हो ना आप तो मेरी ऑडियो, ठीक है ना? जी हजरत, सुन के कॉल करी। ठीक है, अस्सलाम। हाँ ठीक है, मैं डलवा दूंगा इसको चैनल पे।